बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है आयनिक स्ट्रेंथ। दिस concept was first introduced by Lewis and Rundle in 1921. The ionic strength of a solution is a measure of the concentration of ions in that solution. Ionic compounds when dissolved in water, they dissociate into positive and negative ions. यानी जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिज़ोल्व करते हैं सोल्यूशन में तो वो डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में इंटरेक्शन बढ़ जाती है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस इन सोल्यूशन देयर अकर इंटरेक्शंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इन इंटरेक्शन की वजह से आयंस बिहेव डिफरेंटली फ्राम दोज इन द डाइल्यूट सोल्यूशन। क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में इंटरेक्शन नहीं होते और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में जब आयंस की तादाद बढ़ जाती है तो उनमें इंटरेक्शन बढ़ जाती है। तो इन इंटरेक्शन की वजह से और ऐसे सोल्यूशन जिसमें ये इंटरेक्शन ना हो सो इन आयंस की बिहेवियर मुख्तलिफ हो जाती है। So because of this interaction, the ions behave differently from those in the dilute solutions. The behavior of ions in the solution depends upon number of factors that include, these factors include attraction of ions, repulsion of ions, thermal mutation, that is the kinetic energy of the molecules, and all these factors depends on total ionic composition of the solution. The total ionic composition is expressed in concept that is called ionic strength. And ionic strength किस लिए यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस द आयनिक कंपोजिशंस। आयनिक स्ट्रेंथ कैन बी मोलर और मोलर, यानी यूनिट हम जो भी ये मोलर कंसंट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं और मोलर कंसंट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आयनिक स्ट्रेंथ है क्या? आयनिक स्ट्रेंथ इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सम of the terms obtained by multiplying the concentration of each ionic species present in the solution by square of its valence। यानी कंसंट्रेशन को स्क्वायर ऑफ इट्स वैलेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसका हाफ लेते हैं, तो उसका जो भी आंसर आ जाए, उसको जो भी अमाउंट आ जाए, उसको आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। कंसंट्रेशन को स्क्वायर ऑफ द वैलेंस के साथ मल्टीप्लाई करके उसका हाफ ले लेते हैं। That is called ionic strength. And this ionic strength is the measure of electrical intensity due to the presence of ions in the solution. Mathematically, it is given by these equations, where mu is the ionic strength, Ci is the concentration of component I, and Z is the valence of component I. I क्या है? It ranges from 1 to n, then 1, 2, 3, 4 up to n. So Ci is the concentration in molarity or molality of the ion I. Zi is the ionic charge of ion I. For an electrolyte which dissociate into two ions, अगर हमारे पास सिर्फ दो ions हो तो उसमें क्या होगा? हाफ फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें concentration of cation and charge on the cations, valence of the cations, and concentration of the anions and valence of the anions. This is the ionic strength for a solution having two ions. इसी तरह अगर ज़्यादा हो, for example, if a solution contains a number of ionic species like 1, 2, 3, तो having concentration of C1, यानी C1 is the concentration of component 1, C2 is the concentration of component 2, C3 is the composition of component 3, and so on. And Z1 is the valency of 1 component 1, Z2 is the valency of 2, and so on. So then the total ionic strength can be given by these equations. Example ले लेते हैं। For univalent electrolytes such as sodium chloride and KCl of molality M, the ionic strength is equal to its molality. इसकी अगर कंसंट्रेशन M हो तो Na और Cl, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएगा? NaCl से 2 आयंस बन जाते हैं, कैटायंस और एनायंस, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोराइड की वैलेंसी भी 1 है। सो दिस इज़ द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयंस एंड 1 इज़ द वैलेंस ऑफ द सोडियम आयन प्लस मोलैलिटी ऑफ द सेकंड, दैट इज़ क्लोराइड, एंड वैलेंस ऑफ द क्लोराइड। इन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द आयनिक स्ट्रेंथ एज M, molality. This is for univalent electrolytes such as NaCl, KCl, and so on. For electrolytes like magnesium sulfate, each ion is doubly charged, जिसमें से magnesium पर +2 चार्ज, सल्फेट पर -2 चार्ज।
So the ionic this leads to ionic strength of that is 4 times that of an equivalent concentration of sodium chloride. यानी इसमें अगर मोलैलिटी इसकी m है तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ m आ जाती है, और इस केस में जिसमें डबली चार्ज हो, अगर मोलैलिटी इनकी m हो तो इसकी आयनिक स्ट्रेंथ इससे 4 टाइम्स हायर होगा, दैट विल बी 4m। कैसे? कंसंट्रेशन इसकी m है और चार्ज ऑन मैग्नीशियम दैट इज 2 स्क्वायर बाय फार्मूला प्लस concentration of sulfate ion m और valency of sulfate is 2, तो 4 plus 4 8 और 8m divided by 2 4m। अब ये एग्जांपल ले लेते हैं। Calculate the ionic strength for the 0.1 molar NaCl and another example, a solution containing 0.1 molar KCl and 0.2 molar K2SO4। तो पहला NaCl के लिए, अब NaCl की कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 मोलर। तो एज 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस। जो अगर कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की 0.1 मोलर है तो सोडियम की कंसंट्रेशन भी, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर होनी। तो देयरफॉर वी पुट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एज 0.1 और चार्ज इसका है 1 और concentration of chloride is 0.1, so we get using calculator we get the ionic strength as 0.1। इस दूसरी के लिए, अब इसमें तीन किस्म के आयंस हैं ना, पोटाशियम, क्लोराइड और सल्फेट। इसमें 2 किस्म के आयंस थे, सोडियम और क्लोराइड। इसमें 3 किस्म के आयंस हैं, पोटाशियम, क्लोराइड और सल्फेट। अब पोटाशियम के की कंसंट्रेशंस क्या है? अब यहाँ पर देख ले, KCl, इस KCl की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और एक KCl से एक ही पोटाशियम आयन बन जाता है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन ड्यू टू KCl इन दिस सोल्यूशन विल बी 0.1 मोलर। दूसरे केस में 1 मोल से 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट गिव्स 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम आयंस इन सोल्यूशन। तो अब अगर पोटाशियम सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.2 हो जाए तो पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इसका डबल, क्योंकि 1 मोल से 2 बनते हैं। तो अगर 0.2 हो जाए तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम क्या हो जाएंगे? 0.4। तो 0.4 मोल पोटाशियम आयन इससे और 0.1 यहाँ से आ रहा है, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम क्या हो जाएगा? 0.5 मोल, यानी फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल molar KCl and 0.2 molar K2SO4। So molality of potassium and कैसे मालूम करेंगे? That is the molality of potassium due to KCl plus molality of potassium due to K2SO4। molality of K potassium ion due to KCl, वो है KCl की कंसंट्रेशन 0.1 है और 0.1 से एक ही आयंस आ रहा है, तो 1 × 0.1 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ K2SO4 क्या है? वो 0.2 है और 1 मोल K2SO4 से 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 2 मोल्स आ रहे हैं, तो इसको कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? 0.1 फ्रॉम KCl एंड 0.4 फ्रॉम पोटाशियम सल्फेट। सो वी गेट 0.5 मोलैलिटी ऑफ द पोटाशियम आयन। लेट दिस इज M1 और पोटाशियम की वैलेंसी क्या है? वो है 1। लेट दिस इज Z1। अब क्लोराइड की कंसंट्रेशंस, तो ये जो KCl की कंसंट्रेशन है वही क्लोराइड की कंसंट्रेशन भी हो जाएगी, क्योंकि KCl से एक ही 1 मोल से 1 मोल क्लोराइड बनता है, तो 0.1 मोल से 0.1 मोलर क्लोराइड ही बनेंगे। तो 1 × 0.1 दैट इज़ M2 और इसकी वैलेंसी है 1, ये Z2 हो जाएगा। इस तरह मोलैलिटी ऑफ SO4, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट प्रोवाइड्स 1 मोल ऑफ SO4, तो 0.2 मोलर से 0.2 मोलर सल्फेट ही बनेंगे। तो 0.2 इज़ द M3, दैट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सल्फेट आयंस और इसकी वैलेंसी वो 2 है, दैट इज़ Z3। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए C1Z1² प्लस C2Z2² एंड C3Z3², पुटिंग द वैल्यूज़ वी गेट द आयनिक स्ट्रेंथ एट 0.7। तो आज का ये शॉर्ट सा लेक्चर था। ये पहले भी आप लोग असाइनमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये आपको ऑलरेडी इसका यानी समझ आती होगी।